द इंडियन हाउसवाइफ्स के इस नए एपिसोड में उन करोड़ों भारतीय हाउसवाइफ्स का खूब खूब स्वागत है जो अभी कुछ और आगे बढ़ना चाहती हैं, घर का ध्यान रखना चाहती हैं और रखती भी रहती हैं, बुजुर्गों को भी इज्जत देती हैं। एक अच्छा डेवलपमेंट जो पिछले 15 दिनों में हुआ है कि जो नया बिल आया है उससे भारत की पार्लियामेंट में और असेंबली सीट्स में 1/3 सीटें जो हैं वो लेडीज़ को मिलेंगी। हालांकि इसमें समय लगने वाला है। इट कुड बी अराउंड 2029, मतलब अभी 6 साल लग जाएंगे। फिर जो इलेक्शन आएंगे तब उनको ये लाभ मिलेगा। मैं तो समझता हूँ ये अच्छा ही हुआ है, ज़्यादा टाइम मिल रहा है आप लोगों को कुछ तैयारी करने का। और मेरे हिसाब से हाउसवाइफ जो हैं वो सबसे अच्छा मटेरियल है इन सीटों को कैप्चर करने में, क्योंकि वो घर पे अपना लगी रहती हैं। कुछ बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको टाइम मिल जाता है। वैसे अच्छी उम्र है इस फील्ड में एंटर करने की, अराउंड 35-40। तब आपके बच्चे जो हैं 10-15 साल के होने या 10-12 साल के तो होने आ गए होते हैं, तो थोड़ा उसमें ज़्यादा फ्री हो जाती हैं। तो आज हम एक शुरुआत करते हैं और एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। ये कोई एक टीम है स्वेडल। ये स्वेडल जो है इस पे काफ़ी काम करती रहती है। ये 2 साल पुराना वीडियो है, इंग्लिश में है। आपको समझने में आसानी होगी, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि इतनी कम महिलाएं पॉलिटिक्स में क्यों हैं। तो चलिए एक शुरुआत तो करते हैं। सो लेट्स हैव ए लुक एट दिस वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। राजनीति औरतों का काम नहीं है. It's just simpler for a woman to handle her responsibilities at home and leave the politics to men, है ना? ये विधानसभा है कि मर्द सभा? देश दुनिया तो मर्द ही चलाता है ना मैडम, तो वे तो होंगे ही. The social codes of ancient Indian society tended to straitjacket elite women into domestic roles, denying them entry into the political sphere. But defying these codes, many women played indirect and sometimes even direct roles in the exercise of political power. The ancient Indian text Arthashastra acknowledges women's political agency. In the Mahabharata, Draupadi plays an active role in the debate to decide whether the Pandavas should go to war or not. And in ancient Tamil Sangam poetry, we see evidence of women ambassadors, advisors, and even bodyguards and throne guards under Chola rule. Centuries later, in Mughal India too, we see evidence of wives and mothers of Nawabs playing a prominent role in politics. For instance, Babur, considered the founder of the Mughal dynasty in India, was trained in lessons of warfare and diplomatic affairs by his grandmother Daulat Begum. And in the 19th century, when the British annexed the kingdom of Awadh, while Nawab Wajid Ali Shah fled to Calcutta to seek help, it was his wife, Begum Hazrat Mahal, who chose to stay on and challenge the British. But even though women played unofficial roles in policy making and diplomacy, they were rarely given official opportunities in the political realm. This changed with the birth of print media in India and women's public participation in India's first debates on law and reform related to the age of consent and child marriage. The nationalist movement too encouraged the participation of women, especially after the agitations against the partition of Bengal in 1905. This enabled nationalist feminists like Sarojini Naidu, Hirabai Tata, and Mithan Lam to push for greater participation of Indian women in politics, including their right to vote. Between 1920 and 1929, all British provinces in India decided to give women the right to vote. However, this was a right enjoyed by just 1% of women. It was only after the drafting of the constitution in 1947 that all women could vote. But even though women could vote, they were still not holding many political leadership roles. Even today, women make up just about 13% of the Indian parliament, while the global average is around 20 to 25%. But why? It's been 25 years since the bill for reservation of 33% of seats for women in the parliament was introduced, but it is yet to be passed. Most national and regional parties too don't give more than 20% of MLA and MP tickets to women. This attitude stems from a monolithic patriarchal mindset, according to which only men can be capable of being good leaders. And we reinforce this mindset from a very young age. Research has found that in low-income households in India,
While young boys are encouraged to build leadership through sports and public speaking, young girls are often made to skip school and go home early to take care of household chores. In colleges and universities, unions and presidential roles too are often filled by men because women who do make it to the university level prefer to focus on their studies or stay away from dirty politics. This notion of politics being a dirty game plays a huge part in families and their support system finding it dangerous or unsafe for young women to get into politics. This adds to the vicious cycle of politics continuing to be male dominated, a fact which is often highlighted in the treatment of the few women politicians we have. From what they wear and how they drape their saris to how they talk and express themselves, everything comes under scrutiny. They are far more prone to sexualization and derogatory remarks about their merit and demeanor. In fact, a large-scale study found that 1 in every 7 tweets about Indian women politicians is abusive. But here's the thing. There is established and growing evidence that women's leadership in politics actually improves governance by increasing responsiveness to citizens' needs, by improving cooperation between political parties, and by prioritizing long-term development through education and healthcare. So maybe it's time we make space for women in politics, not just with these tokenistic gestures, but by challenging and changing this 56-inch ki chhati hyper-masculine way in which politics takes place. The field of politics and the world at large would be a better and better governed place if we battle these biases that stop women from entering political roles. हम में से या कहूँगा आप में से बहुत सौ की आदत होती है कुछ अच्छी साड़ी लाए, कुछ अच्छी ज्वेलरी लाए, डाल दी फेसबुक पे, कोई अच्छी डिश बनाई, डाल दी फेसबुक पे। तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? ये एक वीडियो आजकल व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हो रहा है। तो दूर रखिए इन चीज़ों को ज़्यादा कभी कुछ दिखाने में। बहुत आजकल चीटिंग बढ़ रहे हैं, लोग फ्री भी हैं, दे आर शॉर्ट ऑफ मनी। तो ध्यान रखते रहिए कि भाई फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अपने आप को मत चिपकाइए, आपकी बातें अपने तक ही सीमित रखिए। ये वीडियो देखिए कितना भारी पड़ता है इन चीज़ों से। लेट्स हैव ए लुक एट दिस वीडियो। वो भाभी जी सुना है आप फ्रिज बेच रहे हैं? तुमको कैसे पता? वो रूप निखार ब्यूटी पार्लर वाली दीदी है ना, तो उन्होंने भेजा है। सुनीता ने भेजा तुम्हें? हाँ दीदी, मैं सौरभ हूँ और ये जतिन है। पता है मेरे भाई का नाम भी जतिन ही है। पर इसका नाम जतिन नहीं है। नाम बताओ बे अपना। अरे एक मिनट भैया, ये चुप बहुत रहा है, एक मिनट चुप रही है। सॉरी। देखिए, हम लेडीज का बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये ससुरा बिल्कुल नहीं करता है। तो जो हम बोले ना, प्लीज चुपचाप कीजिएगा। आप लोग कौन है और आप लोग क्या चाहते हैं? ना 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 ना, कौन है ये जरूरी नहीं है, क्या चाहते हैं ये बहुत जरूरी है। आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है, थोड़ी सी मदद चाहते हैं आपसे। मतलब? एक ससुरा तुम ना अपना हिंदी का सारा ज्ञान पेल दो यहाँ पर। भाभी जी हम आसान कर देते हैं, हम बताते हैं। देखिए, हम आपको माफ कीजिएगा, हम आपके घर को लूटने आए हैं। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। हम कोई करोड़पति लोग नहीं, हम एक नौकरी पेशा आम लोग हैं। हमारे घर में आपको क्या मिलेगा? सोने की चेन, अंगूठी। भैया दिए थे ना 25 तारीख को गिफ्ट में। हैप्पी बर्थडे टू यू। उतार दीजिए। मंगलसूत्र। पगला है क्या? ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो घर में नकली पहन के रखते हैं, असली थोड़ी है। मोबाइल कहाँ गया आपका? यहाँ दे दीजिए, कहीं आप मामा को फोन कर दी साइड से तो। पिन बताइए, पिन बताइए। पिन 2531। 2531। 25 तो आपका बर्थडे है, 31 भैया का। क्या बात है, जोड़ी बनी रही। सच में घर में कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो बैंक लॉकर में रखा हुआ है। अरे भैया ये ऐसे नहीं मानेगी, तुम बताओ ना क्या क्या लेके जाना है। अरे रुक जा रे। देखो, सबसे पहले तो एक काम करो, भाभी जी गहने पहनी थी जो जतिन की शादी में भैया की। भैया की शादी में जतिन इसका नाम हम तभी तो रखे थे। अलमारी में रखा है, जाके ले आओ। भाभी जी हेल्प कर दो जरा सा। चाबी कहाँ है? भैया पैर पे है? पैर पे गोली मारी है, बताएगी तुरंत। गद्दे के नीचे लेफ्ट साइड।
ए पगला, उल्टा सीधा बात मत करो, चुपचाप बता रही है ना भाभी। गद्दे के नीचे है, जाओ और लेके आओ। वो है जो लेडीज का इज्जत नहीं करता, हम तो बहुत करते हैं, जरूरत से ज्यादा इज्जत करते हैं। ये लो भैया, कैश नहीं था वहाँ पे। ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कैश नहीं है घर पर। फिर झूठ भाभी। भैया अभी तो 4 करोड़ के फ्लैट की डील करवाए थे, उसका पैसा तो कैश में ही आता है, कमीशन का। बता दीजिए कहाँ रखा है, बताइए। ये लो, कैश भी हो गया और कुछ नहीं है। ये देखिए, किचन में जाइए, 4 कंगन रखा है भाभी का। वो कहा है कि भाभी जो है आटा गूंथते वक्त कंगन उतार देती है ना। जाओ ले आओ, और सुनो एक बैग भी ले आना, सारा सामान सर पे रख के लेके जाओगे। ये लो भैया, कंगन भी आ गए भाभी जी के। पर आपको ये सब कैसे पता? भैया लूटपाट तो हो गई, हम कह रहे थे कुछ मीठा भी हो जाता। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपने जो कुछ कहा मैंने आपको दे दिया, अब मुझे छोड़ दीजिए, मैं पुलिस में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगी। ए पगला, भाव बदल दिया पूरा। डरिए मत भाभी जी, वो हलवा की बात कर रहा है, सवेरे बनाई थी ना आप, जाके ले लो ना फ्रिज में से। भाभी अभी तक कुछ मना की है तुम्हें। अरे वो बात ठीक है भैया, लेकिन किसी के फ्रिज में बिना पूछे हाथ नहीं डालना चाहिए, गलत होता है ना भाभी जी। देखा, संस्कारी है। जाओ ले लो, ले लो, नहीं मना कर रही भाभी। भैया बहुत स्वाद बना है, सूजी का हलवा। देखिए भाभी जी, कटोरी चम्मच वापस नहीं करने आएंगे, साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि वापस करने आए तो धरा जाएंगे। ये लीजिए आपका फोन। अरे भैया, पुलिस में फोन कर दिया तो? वो तो वैसे भी करेंगे ही। तुम जाके एक काम करो, बाइक स्टार्ट करो, हम बुलेट ट्रेन की स्पीड से आएंगे और फुर्र से उड़ जाएंगे, समझे? बाय बाय भाभी जी। तो चलते हैं भाभी जी। भैया, आपको इतना सब कुछ कैसे पता था? कि फेसबुक पे प्यार 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 मन टैग कर ले यार यार यार। नमस्कार। फेसबुक कह के थक गया कि अपनी गुप्त जानकारियां साझा ना करें, अनजान व्यक्तियों को मित्र ना बनाएं, पर आप जैसे लोग कहाँ मानते हैं। किचन में जाइए, 4 कंगन रखा है भाभी का। आज से 25-30 साल पहले किसी की सिल्वर जुबली बन रही हो तो एक नई बात लगती थी। आजकल तो 25 साल शादी का होना बहुत सिंपल एंड नॉर्मल बात हो गई है। किसी की शादी मान लीजिए 25-27 की एज में हो गई हो तो 50 के होते होते तो उनको 25 साल हो जाते हैं और मनाते हैं। तो एक थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि वो कैसे डांस वांस, उसके लिए कोरियोग्राफर भी आते हैं, सब होता है। तो लेट्स जस्ट हैव एन आइडिया कि कैसे उसमें हस्बैंड वाइफ जो हैं लेकिन पार्टिसिपेट और सब दोस्तों को सबको एक अच्छा इकट्ठा करके दे कैन एंजॉय। लेट्स हैव ए लुक। चूड़ी मजा न देगी
गिड़दा धातर गिड़दा गिड़दा दिन 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 गिड़दा 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 ता 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 धूम। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हो मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। हो मेरे नैना मेरे नैना जुड़वा नैना। ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे कजरा रे। हाय 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 क्या चाल है तेरी। इस एपिसोड से हम एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं, मैटिनी, द मैटिनी शो। तो मैटिनी शो पहले ज़माने में होते थे, करीब 12 बजे के होते थे, उनको मैटिनी शो कहा जाता था। और उसमें लेडीज़ की हाज़िरी ज़्यादा ही होती थी, और थोड़ी सी पुरानी हो चुकी फिल्में वो काफ़ी कंसेशनल रेट में दिखाई जाती थी। अब वो अभी मल्टीप्लेक्सेस में मैटिनी शोज़ जो हैं इस टाइप के नहीं होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि मैटिनी शो उनको कहना जाए जो फिल्में एक वीक से ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, उनको आप मैटिनी शो में रख सकते हैं। थोड़े उनके रेट भी कम रखते हैं, तब तक आप भी समझ चुके होते हैं कि ये पिक्चर देखने लायक है कि नहीं। और ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं, हाउसवाइफ जो हैं, वो इन फिल्मों को जो है अपने इन आवर्स में, चलिए 12 बजे का शो हो, 3 का शो हो, लेकिन को तब तक आपको सब मालूम हो गया होता है कि ये मूवी देखने लायक है भी या नहीं। तो इस हफ्ते की हम आपको उनके पोस्टर डाल रहे हैं, करीब 6 मूवीज़ के। सोचिए इनमें से कोई मूवी आपके शहर में चल रही हो, वो आपको लगता है देखनी है तो देखिए। सो दैट इज़ मैटिनी शो।